Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In today's session, we are going to talk about some questions which might be the part of your AILET examination. As you know that AILET has changed its pattern in this year itself, but they have not produced any sample paper. So what we can assume that there are 50 questions. So some extra number of passages can be found as CLAT has introduced totally passage based questions, which is little difficult within that 2 hour of a span. So in AILET you can expect some more passages, not complete passage based paper, but in terms of number, since there are 50 questions in English examination, so we will be assuming that there will be 4 passage based questions and 20 grammar based question and then 10 vocabulary based question. So without any delay, let us proceed further. Before we proceed any further, let me tell you the admissions for 1-year program and 2-year program is open. You are most welcome for your all doubts. If you have any queries or if you want to know about how CLAT works, what is the admission process, how you prepare everything, our counselor will be more than happy to help you. For more details on our courses, you can visit www.lawentrancindia.com. Now, as you know that there will be passages and we have been discussing about passage. How do you solve a passage? You just see a passage, first you just go to the question, read the question, mark the highlighter and mark the words that you find as a keyword, and after that you come back to the passage and then start reading it. What is the benefit of doing that? Since here your knowledge and your reading capacity is tested under the time frame, so you have to ensure that you do not have to be the master of the contract that has been written. Okay, so that is why we would like you to go through the question first, understand the question and mark the keyword, so that you just find what is important in the passage according to the question and then move on. You do not have to understand each and every word that has been mentioned literally, so make sure that you are saving time. At the same time, you are solving the passage within the given span of time. Okay, as you know that more than one option can be true sometimes, but you have to find the most logical one, most accurate, that according to author is the correct one. So that is an art and you have been practicing this for a long time now. So without any delay, let us solve a passage. You can see this slide, this passage in 2 slides. So I'll be giving you 2 minutes each and then we will be moving for the question. So but before we proceed further, let me teach you how are you going to do this. First, which of the following cannot be? So see, when it says cannot be, especially mark it with some extra color, I would say maybe red or something, because see this create a silly mistake, because in general you just read it as can be. Okay, or maybe after reading the passage you can forget it. So make sure that you are marking this kind of important information, that the question is asking about cannot be rightly inferred from the passage. So there are 4 options, which means 3 out of these can be inferred from the passage, but 1 out of these cannot be inferred. So be very, very particular about this. Question number 2, from the passage above, which of the following can we infer about Thomas Bayes? So we see a person that is Thomas Bayes, that is the protagonist basically in this passage, and we need to find out what do we infer about him, what is his personality, what is he like. Okay, so the next question is, which of the following is the author most likely to agree with? So is the author most likely to agree with, not you. Okay, so you have to answer the question as per the context of passage, not going beyond the box and thinking extra, presuming things. ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपको पैसेज में जो डिस्क्राइब करा गया है उसके हिसाब से हमें बताना होता है. So likely to agree with based on the content of the passage above. So जो भी पैसेज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऑथर जो है वो कौन से proposition से agree होगा. So there are 4 out of 4, 1 is something that the author will most likely to agree with. So you can see that these all questions are based upon inference, और इसी तरह के questions आते भी हैं एग्जाम में. डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट डज द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन द पैसेज मींस. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, यू नो दैट प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है. क्वाइट रिलेटेड है, यहाँ पर भी आपको समझना होगा पैसेज को पढ़ने के बाद. सो विल डिस्कस
Now question number 5, based on the information in the passage above, which of the following can be ascribed to the publisher of philosophical transactions? So this is the publisher house basically, and we need to find about the publisher, what are they like. Okay, so here I'll be giving you 2 minutes of time. Ensure that I'm not going to teach this, you have to solve this passage. So make sure after this time, after the time gets over, 2 minutes for each passage, then I'll tell you the answer and you have to mark your answer accordingly. So your time starts now.
All right, hope you have read the passage well. Now let us analyze the question. This passage will be solved and will be explained by me. The next question you will be solving by yourself. I'll just tell you the correct answer. Okay, so I hope I have given sufficient time to both the slides. Now let us analyze what the correct answers are. So which of the following cannot be rightly inferred, means इनमें से ऐसा कुछ है जो कि नहीं कहा गया है इस पैसेज में. Let us see. First one, Thomas Bayes had time to spend on mathematics studies aside from his professional duties. Okay, we can say this because he got interest in maths. Clergymen in the period described in the passage were not intelligent. Okay, not anywhere in this passage mentions about this line, though it mentioned that degrees were not very important, but it clearly does not mention that they were not intelligent. So let us put this into consideration. Now, ordination in the Church of England in the 18th century did not require specialized study. Yeah, it was mentioned. Discoveries that have no application in the present may prove valuable in the future. Okay, this was also clearly the summary of the passage basically. है ना, अगर हम सम अप करें पैसेज को तो यही होगा इसका आंसर. तो नाउ यू कैन सी दैट ऑल दीज थ्री ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज बट नॉट ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज द वन विच कैन नॉट बी राइटली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. आई होप आपने यही लगाया होगा. नाउ from the passage above, which of the following can we infer about Thomas Bayes? So let us see the characteristics of Thomas Bayes. First is his father had also been a clergyman and that is why he chose to become one himself. ऐसा कहीं mention नहीं है इस तरह की बात. So he was from a noble household and his family was related to the royal family. Okay, not that. So he did not like the people who came to the church. ऐसा कहीं कुछ नहीं mention है. So option number D, he thought discovery that did not have practical value were not worth telling other about. Yes, so when he discovered, आपको पता होगा उन्होंने ऐसे कैलकुलेशन को बनाया जिसके लिए कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है एंड उस समय था नहीं ऐसा, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू ही नहीं है. सो हालांकि उनके फ्रेंड ने इस चीज़ को भेज दिया था वहाँ पे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. नाउ Which of the following is the author most likely to agree with based upon the content? अब author कौन सी इसी बात से agree करेगा, इन चार में से देखते हैं. हालांकि तीन गलत होंगे, एक ही सही है. So let us see. No English clergyman in the 18th century wrote his own sermon. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा mentioned है पैसेज में, लेकिन author most likely to agree किससे होगा वो देखना होगा. So people have had a good education and a lot of money and spare time can sometime do wonderful things. Okay, आप समझ सकते हो, ऐसी बात उसमें मेंशन करी गई है तो इसे हम इसे कंसिडरेशन के लिए रखते हैं. ना ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन is of no use to anyone since no priest or preacher are specially trained in the religion. ऐसी कोई बात नहीं कही गई है पैसेज में. Now Bayes was a very shy person. Okay, yeah, and that is why he did not like to make any his made discovery public. ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल. So आप समझ सकते हो, the correct answer is B, which says people who have had a good education, जिसके पास अच्छी शिक्षा थी, पैसा था, so that एक्सपेरिमेंट किया जा सके एंड खाली समय था, वो बहुत ही वंडरफुल थिंग कर सकता था जैसे कि प्रीवियस टाइम में हुआ करता था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी का अगर आप ध्यान से देखो, सो लाइकलीहुड और चांस ऑफ समथिंग ऑकरिंग. ठीक है, ये आपका एक सही करेक्ट आंसर होता है. प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है कि ऐसा हो सकता है, संभावना है. सो लाइकलीहुड और चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, और ये पैसेज में भी इसी मीन से होता है. नाउ द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, ऐसा कुछ नहीं. द कलेक्शन ऑर्गेनाइज डिस्प्लेइंग. ओके, डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका क्या मतलब हुआ, सी. Question number 5, based on the information the passage above, which of the following can be ascribed to the publisher? क्या हम कह सकते हैं पब्लिशर के बारे में जो कि philosophical transaction के थे. They were interested in publishing theoretical mathematical discovery. Okay, they were definitely interesting, इसीलिए तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रिंट करा जो कि उस समय relevant भी नहीं था. Now they were interested in public discovery that may not have had practical application at the time of publication. obvious सी बात है क्योंकि बेस का जो रिसर्च है वो उसमें पब्लिश करा गया, तो ये भी एक सही ऑप्शन है. They did not restrict publication to full time mathematics. ऐसा भी नहीं है क्योंकि अगर फुल टाइम मैथमेटिशियन के लिए होता सो मे बी थॉमस बेस की डिस्कवरी को बेसिकली जगह नहीं मिलती वहाँ पे. सो इफ वी थिंक ऑल ऑफ द अबव कैन बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस.
ओके, सो आई गेस आपने पढ़ा थॉमस बेस के बारे में. यू ऑल्सो सॉ व्हाट वाज हिज डिस्कवरी, हाउ डिड ही रिएक्ट व्हेन ही डिस्कवर्ड इट, एंड बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन वी आंसर द 5 क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग इट बाय योरसेल्फ, बट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो दिस पैसेज इज ऑल अबाउट बैट, हाउ बैट functions differently than a human being, because they fly at night, they sleep upside down, and there are so many things, their listening skills and so many things are different from us. Okay, so accordingly let us see what the passage is about. Why does the author choose bats instead of mice, pigeon or whales to present the main problem in the passage? So author ने bat को ही क्यों चुना, ये आपको समझना पड़ेगा जब तक आप passage नहीं कर लोगे. Question number 2, what does the word alien as used in the passage mean? So alien का क्या मतलब हो सकता है? Basically a person who's from another country, another space, है ना. But here as per the passage आपको बताना है, so make sure that you are planning in that way your answer. Question number 8, which of the following is the author most likely to agree with? इनमें से कौन सा है जिसमें author बहुत ही ज़्यादा सहमत होगा आपकी बातों से? Let us see, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं. Which of the following is most similar to the problem or question the author discusses in the passage? So we need to find that ऐसा कौन सा चीज जो प्रॉब्लम है जिसके साथ आप मैच कर सकते हो इन एग्जांपल्स को. Let's see. The last question is what is the author's main point in the passage above? तो ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट समझने के लिए ये ध्यान रखना होता है कि इन एवरी पैसेज सब कुछ वो पॉइंट बार बार रेस किया गया हो. ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. आई विल बी गिविंग यू टाइम. ये क्योंकि पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वुड गिव यू 3 minutes टू रीड अ स्लाइड. मेक श्योर यू आर ऑन द सेम पेज, एंड आफ्टर आई कम then we'll solve this passage. Your time starts now.
All right, welcome back. I hope you have read and you are ready to be tested. Make sure that your answer should be as per the context of the passage, ना कि जो आपको लगता है वो. So the first is, why does the author choose bats instead of mice, pigeon or whales to present the main problem in the passage? ठीक है. So the correct answer of this passage is D, because their habit, behavior and sense organ are very different from ours. जैसा कि मैंने बताया था, yet people are willing to believe that they have experience. ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कैसे एक्ट करते हैं क्योंकि हम वो है ही नहीं जो वो हैं. ठीक है, their function, their everything work differently. ठीक है. On the other hand, mice, pigeons, whales, something are common but not for bats. Question number 2, what does the word alien means? तो देखो, alien का मतलब from another country भी होता है, from another planet भी होता है, hypothetical and fictional नहीं होता, unfamiliar and disturbing. So when you read the passage, you will find that here in this context, alien means unfamiliar or disturbing. Question number 3, which of the following is the authors most likely to agree with? इनमें से ऐसा कौन सा है जिससे राइटर जो है वो हमसे अग्री करेगा अगर हम चुनते हैं तो. so that we cannot understand and experience the experience of other species by relying solely upon the our own organ of perception. है ना, हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं. ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है. ठीक है, so this is the correct one. On the other are not related, not worthy. Question number 4, which of the following is most similar to the problem? So see, so you have to find out the problem. 4 problem आपके सामने दिया गया. The first, a doctor will not be able to understand what it is like to be an engineer. Okay. A person of one race will not be able to understand what it is like to be a person of other race. So देखो, ये सही आंसर एकदम साफ सिंपल सी बात है. जब हम बैट के बारे में नहीं जान सकते कितना भी रिसर्च कर ले, बिकॉज दैट इज़ द डिफरेंट रेस, राइट. बहुत सारे रिसर्च के बाद भी स्टिल देयर इज अ चांस दैट यू डू नॉट नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट इट. सो अ पर्सन ऑफ वन रेस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड what it is like to be the person of another race. बाकी सारे अनरिलेटेड है, तो इसलिए इनकरेक्ट इफ यू हैव रेड द पैसेज वेल. नाउ व्हाट इज द ऑथर्स मेन पॉइंट? सो मेन पॉइंट क्या है? लेट अस सी. So that while bat may have experience, it is very difficult for us to understand or describe that. मैंने बार बार यही बताया. Experience since our minds and ways of perception different from our bats. Bat से एकदम बिल्कुल अलग है हमारा. ठीक है, बाकी चीज़ें सिमिलर ही हैं. So here we finish our 2 passages. So this is the way you have to solve the passage. Make sure that you are going through the question, क्योंकि अगर कभी आपको कोई चीज़ कम समय में करना है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा टॉप टू बॉटम समझो. तो अगर आप केवल पैसेज से शुरू करोगे, यू विल बी एंडिंग अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम. फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर कहोगे अच्छा इस वाले सेक्शन से पूछा था. सो आई वुड रिकमेंड दैट गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट, रीड एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड एंड आफ्टर दैट कम टू द पैसेज, ताकि आपको केवल हाईलाइटेड पॉइंट पे ही ध्यान जाए आपका और आंसर कर सको. Now since we are solving expected questions, so ALET is very experienced in producing such kind of questions, जिसमें कि ये बहुत ही easy question माने जाते हैं, लेकिन बहुत ही difficult इसलिए बना दिए जाते हैं because it is time taking and time is something that matters, क्योंकि आपको 90 minutes ही बस मिलते हैं, है ना. विद इन 90 minutes आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं. सो यू कैन सी दैट दिस इज अ क्वेश्चन लुक्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग. तो पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से, मिस्टेक नहीं करना है. लिखा है फॉर द वर्ड गिवन एट द टॉप, यहाँ पे देख लिया आपने. द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑन द लेफ्ट, ये आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन हो गई ये सारी की सारी. उसके बाद बोल रहे हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग यूसेज ऑन द राइट आउट ऑफ द 4 पॉसिबिलिटीज गिवन इन दिस टेबल. तो एक वर्ड है रन डाउन, इसके 4 डिक्शनरी मीनिंग हो गए. अब सारे के सारे यूज करे गए हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को. अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखो, बहुत बड़े क्वेश्चन से मत घबराओ. सबसे पहले देखो कि इन चारों में से कोई एक जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेड माई कैट वॉज रन डाउन बाई ए बस. तो एग्जाम्पल को जब आप पढ़ते हो, इसे पढ़ोगे आप कंफ्यूज रहोगे. आप एग्जाम्पल को पढ़ लो, हमेशा इस साइड को पढ़ लो. देखो क्या कह रहा है, माई कैट वॉज रन डाउन अ बस. अब रन डाउन बस है तो क्या होगा? ट्रेस होगा, क्रिटिसाइज होगा, हिट विद द कार होगा, कैंपेन ऑफ फॉर अ गवर्नमेंट. तो जाहिर सी बात है ये हिट हो गई ना, एक्सीडेंट हुआ इसका यहाँ पे. तो यहाँ पे जो रन डाउन है वो हिट विद द कार के कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है. तो क्लैरिफिकेशन दूसरा भी देख लेते हैं. हैव यू रन डाउन द एड्रेस? तो एड्रेस को रन डाउन क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं बताओ? ट्रेस, क्रिटिसाइज, तो ये तो हो गया कैंपेन करने के लिए, नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, तो ट्रेस करने के लिए, है ना। तो अगर आप देखो किसी के पास सी ई है वो आपका करेक्ट हो सकता है। अब हमारे पास दिक्कत ये सी, इसके पास सी, इसके साथ सी, इसके साथ भी है, तो इन दिस केस हमें दूसरा भी करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने लगाया कि ए एफ, अब देखो ए एफ किसके पास नहीं 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 और केवल इसके पास ए एफ है, सो ये ही एक सही आंसर है। अब आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी दैट विद इन 30 सेकेंड्स वी डिड दिस क्वेश्चन। बहुत ध्यान से क्या करना है, पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है जल्दी से, देन कम टू दी यूसेज पार्ट। यूसेज को आपने देखा और उसके बाद उसके डेफिनेशन के साथ मैच कर लिया। दीज आर वेरी इजी टू डू, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दीज आर वेरी वेरी इजी टू डू। ओके, आगे की आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए आगे बता दूँ, वी एच क्यों हुआ, वी का एच, माई फादर रन्स डाउन एवरीवन, तो रन्स डाउन का मतलब क्रिटिसाइज करना हो गया यहाँ पर, ठीक है। लास्ट आपका डी जी बचा, डी जी, तो कैंपेन, सूरज रनिंग प्रेसिडेंट, तो कैंपेन हुआ रनिंग फॉर, है ना। सो दिस इज क्वाइट ईजी। Now let us see another question that has taken place in ALA 2016. So there are chances कि इस साल भी आ जाए आपके इस तरह के क्वेश्चन, हर साल आते हैं। सेम इंस्ट्रक्शन, एक दो तीन क्वेश्चंस तो होते ही हैं। सो नाउ डायरेक्टली जंप इनटू द यूसेज पार्ट। नाउ सबसे पहले, वुड यू माइंड रनिंग ऑफ 20 कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी? क्या लगता है 20 कॉपीज़ का क्या करना होगा? मेक लीव नो, रिप्रोड्यूस यस, लीव क्विकली नो। सो बी ई एक ऐसा ऑप्शन है जो तुरंत मैच करा। आप देखो बी ई इसके पास है और फिर बी ई इसके पास है, बस अब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होने वाला है। आगे देख लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे सामने। दूसरा, यू शुडंट स्विम वेयर द डर्टी वाटर, वाटर रन्स ऑफ इनटू द ओशियन। सो वाटर क्या करता है, मेक लीव करता है, रिप्रोड्यूस हो चुका है, लीव क्विकली नहीं, फ्लो, तो वाटर जो है फ्लो करता है। तो आपका डी और एफ के साथ मिल रहा है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे डी एफ है और यहाँ पर भी डी एफ है। देखो क्वाइट कंफ्यूजिंग, दोनों ऑप्शन दे दिया। अभी भी आपको चेक करना पड़ेगा, डू नॉट लीव इट, है ना। फिर है वाई डिड यू रन ऑफ आफ्टर द डिनर। सो आफ्टर द डिनर के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मेक लीव होगा या तो लीव क्विकली हुआ। तो लीव क्विकली, है ना, पूछ रहा है ना कि क्यों डिनर के बाद भैया आप वो छोड़ गए थे, चले गए थे, है ना। सो द न्यू गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रन द क्रिमिनल ऑफ, यहाँ पे मेक लीव होगा इसका। सो हमारे पास ऑप्शन है आपका सी के साथ जी का मैच हो रहा है, तो सी जी यहाँ पे भी है, रेस्ट कहीं कुछ नहीं है। सो ए एच, आपका ए और एच बचा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो दिस वाज क्वाइट ट्रिकी बिकॉज इसमें दो दो ऑप्शन अभी भी मैच हुए जा रहे थे आफ्टर एलिमिनेशन इवेंट, ठीक है। सो आप तब तक एलिमिनेट करो जब तक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो यू आर गेटिंग अ मार्क हियर, सो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस क्वेश्चन, और ये डूएबल है। सो इफ इट इज नॉट डूएबल, लेट्स से देयर इज अ वर्ड दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ, और यू कैन नॉट इवन डिसाइफर इट्स मीनिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू, सो एट दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू यू डू, छोड़ दो उस जगह, उसे छोड़ दो, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मेक श्योर, बट यहाँ पे डूएबल है, थोड़ा टाइम लग रहा है पर आप इसे कर सकते हो। नाउ सी द अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। सो क्लैट 15 में पूछा गया था, दैट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। सो नाउ यू मस्ट रीड एंड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि बी गलत है, तो अगर आपने यहाँ पे बी लगा दिया तो ये बी जो है वो सी को बताता है। सो वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसे सिली मिस्टेक्स माना जाएगा, है ना। सो व्हेन यू कंसीडर दिस एज अ सिली मिस्टेक, तो आपने मेहनत भी करा, आपको चीज़ें आती भी थी, बट थोड़ा सा अटेंटिव ना होने की वजह से आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। सो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट। सो आई वांट टू डू एन MBA बिफोर गोइंग इनटू बिजनेस, सही है। प्रीति's husband has been on active service, ठीक है। The horse suddenly broke into the buckle, देखो ये दिस इज नॉट एन इडियम, करेक्ट इडियम। सो broke into the gallop होता है, ना कि बकल। आई नीड टू फाइल एन इंश्योरेंस। सो हमारा सी जो पार्ट है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हम सर्कल करेंगे, है ना, क्योंकि बी में लिखा हुआ है सी। हम ऐसा नहीं कि सी देख के यहाँ पे सी लगा दिया, अगर आपने ऐसा कुछ भी करा तो बी और सी दोनों गलत बताएंगे। नाउ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, I must run fast to catch up with him, सही है। The newly released book is enjoying a proper run, बिल्कुल सही सेंटेंस है। The doctor is on the hospital round, सही है। You cannot run over him like that, देखो ये गलत है, क्योंकि क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका बेसिकली रन डाउन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसल्ट करना और ह्यूमिलिएट होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे उस केस में रन डाउन यूज़ करना होगा, ना कि रन ओवर। सो डी किसके पास है, बी के पास। सो ओनली बी, ऑप्शन बी मीन्स डी इज द इनकरेक्ट वन, रेस्ट इज करेक्ट।
नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन प्रपोजिशन और ये क्लैट 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ प्लीज स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माय रोमांटिक लाइफ. सो अब देखो सब कुछ सेम है यहाँ पे, आपको इसमें मैच करना होगा कि कौन सा सही होगा. सो विद माय रोमांटिक नो, into my romantic no, for my in my romantic. So this is the current one. very easy है ना. so कुछ questions बहुत easy होने वाले हैं इसमें, जैसे कि ये now the Titanic did not reach its destination. so Titanic देखो शिप के लिए स्पेसिफिकली हर लगाते हैं, ये आपको कुछ है जो कि याद भी करना होता है, बिकॉज इन जनरल इट्स लगा देंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे. सो शिप के लिए आप फेमिनिन जेंडर यूज करते हो. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नाउ डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 to 8 देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अभी यहाँ भी चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन. पूरा सेंटेंस सिमिलर सा दिख रहा है. नाउ व्हाट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट, दीज 4 वर्ड्स. सो एक सही वर्ड का चुनाव करना होगा आपको एक सही सेंटेंस बनाने के लिए. तो ग्रामर इज वेरी गुड बट यू नीड टू वर्क अपॉन मैनेजिंग योर प्रोनाउंसिएशन. सो व्हाट डू यू थिंक कि प्रोनाउंसिएशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं? नो. सो करेक्ट इज द correcting pronunciation is the correct word here. So option number C. Now 8. The film star climbed off. So देखो यहाँ पे option number D, got off, कार से उतरने को got off बोलते हैं. On the other hand came out of किसी बड़े चीज़ के लिए, climbed off पेड़ से, got out of एक logged सी जगह से. So got off is the correct word here in this sentence. Now अभी देखो दूसरे kind of sentence. This is error detection based question जिसमें कि 4 पार्ट होते हैं एक sentence के, and you have to mark the one which you find the correct one. So हमारे सामने 4 ऑप्शन है. एविडेंटली आवर प्रोडक्ट इज द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट. अब देखो इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है. आप जानते हो कि मोस्ट और यूनिक खुद में एक सुपरलेटिव डिग्री है. सो डू नॉट नीड एन एक्स्ट्रा सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जैसे कि डबल सुपरलेटिव एंड डबल कंपैरेटिव नहीं हो सकता. लाइक मोर हैप्पियर कभी नहीं बोल सकते आप, उसी तरह से मोस्ट हैप्पीएस्ट भी नहीं बोला जा सकता. ठीक है. सो हियर यूनिक. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि यूनिक के बारे में सबको नहीं पता होता. सो यूनिक इज अ वर्ड दैट इज ऑलरेडी इन सुपरलेटिव डिग्री. सो आपको अलग से मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती. ऑलराइट, होप यू आर ऑन द सेम पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू बेंड. अब देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट होता है. अब वर्ब एक बार आपने टू बेंड लगा दिया, सो देन लिफ्टिंग नहीं हो सकता. तो द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू बेंड एंड देन लिफ्ट is the correct word here, not lifting. ठीक है, the weight. So lifting नहीं होगा, इसलिए पार्ट सी में आपकी गड़बड़ी है. सो आपने सी लगाया. बहुत ध्यान से लगाना होता है कि आप देख लो वहाँ पे कैसा कंफ्यूज है. ए में डी दिया हुआ है, सो डी मतलब ये. सो दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग वेरी केयरफुली. द होप टू गो थ्रू द बुक टुडे आई हैव ऑलमोस्ट रेड. सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़िए. द होप टू गो थ्रू द बुक. क्या लगता है आपको ये सेंटेंस सही है? होपिंग टू गो थ्रू द बुक टुडे आई हैव ऑलमोस्ट रेड हाफ ऑफ इट. सो होपिंग ए is the one which is incorrect. Now our boss always asks us to pay full attention to the work at hand. At hand नहीं, in hand होता है यहाँ पे. So preposition mistake D. Sorry, D यहाँ पे है आपका. On listening to the confession of love, she blushed until she was purple. है ना? तो she was purple. यहाँ पे कलर इडियम यूज किया गया है. इट मीन्स कि आपको कलर इडियम पे भी एक बार ध्यान देना चाहिए. On listening to the confession of love, she blushed until she was purple. So she was red. So purple means गुस्सा होना होता है, red मतलब blush हो जाना होता है. ठीक है. So now let us proceed. Let us see some more questions. First, men are apt to pick up holes. Pick up hole नहीं होता है, pick out hole होता है. ठीक है, या pick in hole होता है, बट पिक अप होल नहीं होता. कमियां निकालना पिक इन होल्स होता है. सो मेन आर एप्ट टू पिक इन होल्स इन द व्यूज ऑफ दोज हुम दे डू नॉट लाइक. जिसे आप पसंद नहीं करते हो आप उसमें कमियां निकालते हो, बट जिसे आप पसंद करते हो यू डू नॉट सी दी लूप होल्स बेसिकली. सो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट वन. हमें क्या फाइंड करना था? एरर. ठीक है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरर. The myth that some races are naturally superior than. ठीक है. देखो जैसा कि मैंने क्लास में पढ़ा है और अगर आपने ग्रामर बुक को अच्छे से पढ़ा है, यू माइट फाइंड दिस थिंग दैट कभी भी कोई वर्ड जो IOR पे फिनिश होता है उसके बाद हमें देन की जगह टू वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर,
senior. These are some words that finishes at IOR and that is followed by to in place of than, क्योंकि हम comparison ही तो कर रहे हैं. Alright guys, so I hope you understood that there are various kind of questions. I have helped you understand some parts of this with the help of some previous year questions. Make sure if you have any doubt, you can leave your comment in the comment box below and drop your queries. We will be more than happy to answer your questions. So Manu Law Classes wishes you all the best for your upcoming ALET examination, which is scheduled on 26th of this month. I hope you guys are up to the mark. आपने अपना माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया है, आपने अपना शेड्यूल बना लिया है, एंड डू नॉट लीव द रीडिंग प्रैक्टिस टिल द लास्ट डेट. रीडिंग प्रैक्टिस को हर दिन बना के रखना है, ठीक है. सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रीड समथिंग वैल्यूएबल, एनी आर्टिकल, एनीथिंग दैट यू लाइक, and then start your day, okay, with other subjects. So do subscribe to our YouTube channel for informative videos like English, LA, Maths, Reasoning, GK, and do not forget to watch the DNA published every day by Gautam sir at official channel of Manu Law Classes. You can also join our social media networking site for regular updates on law. So thank you so much for staying in the video till the last. Stay tuned, stay happy.